Good afternoon, dear students. Today we are going to start your chemistry chapter. That is chapter number first, chemical reactions and equations. And the synopsis or topic covered in this chapter will be introduction. First, we will have a little bit introduction about the chapter. Second is the types of changes. The third one is chemical equations, in which we will study the two types of equations: unbalanced chemical equations and balanced chemical equations, in which you learn that how chemical equations are to be balanced. Then next is our types of chemical reactions. Next we will study types of chemical reactions, in which we will study the different types of reactions. And the last topic of this chapter is effects of oxidation reactions in everyday life. जो oxidation term है यहाँ पे, that we will study under the types of chemical reactions, and in this topic we will study the various examples of oxidation reactions in our daily life. So here we are going to start this chapter with the chemical reactions and equations. So here are that given the various examples in your book. So in our daily life, first example here is milk. When summers we left the milk at room temperature, you see that turns into curd after some time. And second is iron tawa or pan or iron nail is left exposed to humid atmosphere. जब हम आयरन तवा या कोई भी अगर आयरन आर्टिकल है उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं, देन क्या होता है उसके ऊपर, देन देयर विल बी रस्टिंग ओवर दैट ऑब्जेक्ट. क्लियर. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो ग्रेप्स है उनमें फर्मेंटेशन हो जाता है. फूड इज़ कुक्ड, जो कुकिंग ऑफ फूड है. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जैसे हम लोग फूड खा रहे हैं. क्लियर. वी टेक फूड एंड दैट गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. And the next example is we respire. All these examples in our daily life, what they show? They show different types of changes. Clear? So in our day-to-day life we have studied various types of examples of changes. First we will divide them into two parts, or rather said into two types. So first one, physical changes. In your previous classes you have studied about the physical changes or chemical changes, little bit introduction of these changes. So in physical changes there is no formation of a new substance. Clear. So इसमें आप क्या याद रखोगे कि new chemical substance form नहीं होगा. No new chemical substance is formed. क्लियर. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देखे, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन की रस्टिंग हो रही है. क्लियर. फूड की कुकिंग हो रही है, तो उसमें जो नेक्स्ट सब्सटेंस बन रहा है उसके कैरेक्टर्स डिफरेंट है. दैट इज हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. सो फिजिकल चेंजेस में क्या होगा, न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. सो इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, मेल्टिंग ऑफ आइस. क्लियर. जब आइस की मेल्टिंग होता है तो क्या बनता है, वाटर. उसी वाटर को हम क्या कर सकते हैं, वी अगेन क्या कर सकते हैं, उसको फ्रीजिंग करके उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. सो क्लियर कि फिजिकल चेंजेस में क्या होगा, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होंगे. क्लियर. नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल चेंजेस का. What are chemical changes, or the chapter belongs to what, chemical reactions. So next we will study about chemical changes. So from here you can understand that the new substances are formed with different properties. क्लियर. जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, जैसे मिल्क था, जब वो कर्ड बना तो करेक्टर्स क्या हो गए, चेंज. कर्ड के करेक्टर्स अलग हैं और उस मिल्क के करेक्टर्स अलग हैं. क्लियर. तो उसमें क्या लिखेंगे हम, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, ओरिजिनल सब्सटेंस ने क्या कर लिया, अपना नेचर भी लूज़ कर दिया
और अपनी आइडेंटिटी भी लूज़ कर दी। क्लियर? मिल्क का नेचर अलग होता है। क्लियर? आइडेंटिटी क्या है उसका, उसको एज अ मिल्क हम ले रहे हैं। क्लियर? उसका यूज़ डिफरेंट उसमें कर रहे हैं, बट जब कर्ड बन गया उसका तो पूरा का पूरा नेचर एज वेल एज आइडेंटिटी ऑफ दैट मिल्क गेट्स चेंज्ड। क्लियर? तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, जैसे इसमें और एग्जांपल्स आते हैं बर्निंग ऑफ वुड। क्लियर? जब बर्निंग ऑफ वुड होगा तो आफ्टर बर्निंग क्या हमें वही वुड मिलेगा? नो, वी विल गेट एश। क्लियर? So next example here is again burning of fossil fuels. Again what we are left with? Carbon dioxide and sometimes smoke. So these are the few examples of chemical changes, and these processes जो होंगी इसमें, इनको क्या टर्म देंगे हम? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस मीन्स जो प्रोसेसिंग हुई चेंजेस की, जब ओरिजिनल सब्सटेंस से वो कुछ नया सब्सटेंस बना, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट जो आता है टर्म इसमें जो हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। व्हाट आर reactants and what are products? इसमें हम एग्जांपल्स भी देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के। अभी यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं, इसका एग्जांपल देती हूँ कि ए एंड बी कंबाइन हुए, टू सब्सटेंसेस कंबाइन हुए और उन्होंने न्यू एक सब्सटेंस बनाया सी। तो क्या लग रहा है, ये एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है और केमिकल चेंज है, जिसमें ए और बी डिफरेंट सब्सटेंसेस है और उन्होंने एक डिफरेंट सब्सटेंस बनाया, दैट इज़ सी। क्लियर? अगर हम इसमें ऐसे भी लें, अनदर एग्जांपल भी लेंगे हम, तो इसमें हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? जो ए और बी है, दीज आर रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट किए और उन्होंने क्या बनाया? एक अलग तरह का सब्सटेंस बनाया, और उस सब्सटेंस का नेम क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टू भी हो सकते हैं, जैसे ए प्लस बी दे फॉर्म सी प्लस डी। क्लियर? दैट में वेरी, देयर नंबर में वेरी। क्लियर? सो रिएक्टेंट्स को क्या लिखेंगे हम? सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या बोला? रिएक्टेंट्स बोला। क्लियर? और जो आफ्टर रिएक्शन फॉर्म हुआ वो क्या है? प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्ट्स के उसमें न्यू सब्सटेंसेस which are formed during a chemical reaction.